Hello students. Today I want to discuss a few idioms and phrases with you. I've taken a few classes earlier also discussing a few idioms and phrases. Now people keep asking me whenever I go to classes, when I speak to my students, they say from where do we really need to learn these idioms and phrases? Because when I come to classes, I teach about 5, 7, 10, 15, say like this only, how many can you learn? Say 1000, 2000. So which site to follow and which book to really look into? That's what I say is kindly whatever site you take in consideration or whatever book you read, you find most of the books or most of the sites are giving you the answers, the phrase written, and then the answer is given to you. Sometimes a few people have made a few sentences as well. That is rather a better way of doing it. But apart from this, I say when I take these classes, I say that let's understand the logic why this phrase came into existence. And then from there, that story is there in your mind, and then you keep it, that you retain it easy. This is what the idea is. So let's try learn a few phrases today again. I say the phrase is play possum is a phrase. What do you understand by the phrase play possum? Play possum means to feign ignorance, means to pretend. Say like that, means आप ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं, तो दिस इज प्ले पॉसम होता है. सो आई राइट लाइक दिस, ही इज प्लेइंग पॉसम. से लाइक दैट. In the investigation, though he knows a lot about it, so that's what we say कि यार वो नाटक कर रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे पता ही नहीं, बट ऐसा है नहीं. ही इज ट्राइंग टू प्ले पॉसम. नाउ यू अंडरस्टूड. प्ले पॉसम मतलब ऐसा दिखाना जैसे आपको नहीं मालूम. अब बेचारे बन जाते हो, अब बिल्कुल इनोसेंट बन जाते हो. फीन होता है, एंड फीन इज टू मीन्स प्रिटेंड ही होता है. फीन का मतलब इज टू प्रिटेंड होता है, वो फीन हो जाता है. अब देखें लॉजिक मेरे वाला कि आया कहाँ से. तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉसम इज अ काइंड ऑफ क्रीचर. When some other animal comes to attack it or kill it, what it does, it just holds its breath and lies on the ground, just indicates as if it is dead. So the other animal does not eat it, because the reason they don't eat the dead animal. So what he does for that particular moment, he pretends as if it's dead. Possum does something of this kind, and if you are doing something of this kind, then means you are play possum. That's what we say. Okay. Then another phrase is stay put is the phrase. Stay put is the phrase. Stay put क्या होता है? Stay put. Put means रखना है. Stay मतलब रुके रहना है, यानी जहां पर आप हैं वहीं पर रहिए, शिफ्ट मत करिए. That's what we mean say. Okay. Remain somewhere. Remain somewhere without moving. That's what we say. Remain somewhere without moving. Means जहां पर आप हैं वहीं रहिए, शिफ्ट मत होइए. दैट्स व्हाट इज सेइंग. सो द आर्मी इज ऑर्डर टू स्टे पुट इन चाइना, इन नेपाल, वेर एवर इट इज हैपनिंग. आर्मी ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से गोली चला देती है. दे आर गिवन दी ऑर्डर्स टू स्टे पुट होता है. यू वांट टू चेंज योर पीजी वेर यू आर स्टेइंग, you call up your father that you've seen a new PG and you want to shift there. Your father says, I'm coming the next month. You stay put for the time being. Means
शिफ्ट मत होइए, दैट इज द स्टे पुट होता है. ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन एंड ऑल, व्हाट वी वर टोल्ड टू स्टे पुट, डू नॉट शिफ्ट, दैट इज व्हाट वी से इज स्टे पुट होता है. ओके, दैट्स व्हाट द केस इज. देन another phrase is the last straw. I have not written the example for the stay put. Hope you understand. The army is ordered to stay put. If you want, I can write. The army is ordered to stay put. Say like that. The last straw, we say difficulty after a series of difficulties, when things become unbearable, we say that is लास्ट स्ट्रॉ होता है. यानी उसके बाद आप झेलने की क्षमता खत्म हो जाती है. वी से दी लास्ट स्ट्रॉ है. वैसे तो समझ ही आता है दी लास्ट स्ट्रॉ है. लास्ट स्ट्रॉ ऐसे भी कह सकते हैं. जनरल एग्जांपल देख लीजिए, ऑन द कैमल व्हेन ही वाज पुटिंग द लोड एंड ऑल दोज थिंग्स, तो हाउ लॉन्ग इट कुड टेक. द स्टेज केम व्हेन यू पुट समथिंग ऑन द camel or your animal, it buckles down under it. What happens? It collapses. So what do you say? The last straw होता है. वो लास्ट स्ट्रॉ होता है. अगर आपको याद है तो लास्ट स्ट्रॉ में कुछ ऐसा, इफ़ यू रिकॉल, बचपन में हम एक ऐसी गेम खेला करते थे वेयर वी हैड स्टिक्स. ये 4 स्टिक आपने लगाई, फिर दूसरी स्टिक आपने इस तरीके से डायगनली लगा ली, फिर उसके बाद आपने फिर स्टिक यहाँ लगाई, फिर ऐसे स्टिक लगाते चले गए और वो एक पाइल अप करते चले गए. देयर केम ए स्टेज, वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाता था कभी कभी, फिर कॉल थोड़ा बैलेंस करते थे. व्हाट हैपन्स? देयर कम्स ए स्टेज व्हेन यू पुट दैट स्ट्रॉ एंड देन इट कोलैप्सेस. दैट द लास्ट स्ट्रॉ है. वहाँ से निकाला है द लास्ट स्ट्रॉ, यानी उसके बाद वो झेल नहीं पाता है. तो दैट्स व्हाट वी से इज द लास्ट स्ट्रॉ. डिफिकल्टी आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज व्हेन थिंग्स बिकम अनबेयरेबल हो जाता है, दैट द लास्ट स्ट्रॉ होता है. In a community, if the ruler is dictator, you have seen many times public rebel. When does the public rebel? Only when it becomes unbearable. वो झेलती रहती है, लेकिन एक स्टेज आ जाती है जब यार वो झेल नहीं पाते. दी लास्ट स्ट्रॉ होता है. ठीक है, ऐसे लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसा मोमेंट आ सकता है कि जब आप झेल नहीं पाते तो आप टूट जाते हो. दी लास्ट स्ट्रॉ होता है. इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ द US, so they were going through coronavirus lockdown and all. People there were really very upset with the lockdown and certain other things, deaths happening like uncountable. And what happened? All of a sudden this racial thing came into existence. And what happened? They all came on road. It turned out to be a last straw. They could not take that kind of pressure anymore. So that is the outcome of the whole pressure they had. Maybe racial as well, but it is ultimately, जब आप झेलते जाते हो तो आपसे झेलने की क्षमता खत्म हो जाती है. We say that is the last straw है. Hope you have understood now. One phrase is play possum from the animal that I talked about. Then stay put, I said stay you know and put you know. So you have to remain there. And the last straw I told you from this kind of game or from the example of the camel, you can keep in mind how it comes into existence. Okay? I've told you these 3, kindly note them down. We'll discuss it further. So now another phrase, that is go Dutch, we say. The phrase is go Dutch. What do you mean by the phrase go Dutch? We say to share the cost of something, especially a meal. It is said like that.
स्पेशली मेल, बट अदरवाइज भी यूज़ होती है। और ये स्पेशली होता है, कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग स्पेशली भी लिखते हैं, और कभी कभी आपने गौर करा हो तो लोग स्पेशली भी लिखते हैं। दोनों ही सेम होते हैं, दे आर इंटरचेंजेबली यूज, स्पेशली और ई स्पेशली। बट स्पेशली यू शुड यूज व्हेन यू आर राइटिंग। बोलते वक्त आप कुछ भी बोलिए, बोलते वक्त नॉर्मली हम ऐसा कहते हैं, लिखते वक्त ई वाला बोलिए और बोलते वक्त एस वाला बोलिए, दो दे कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड, बट एस्थेटिकली स्पीकिंग व्हेन यू राइट गुड इंग्लिश, राइट ई, दो यू कैन राइट एस एज वेल, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, लेकिन अच्छा क्या लगता है, जो एलिगेंट माना जाता है ई वाला, बाकी इंटरचेंजेबली यूज होता है। Now, go Dutch we say. It is to share the cost of meal, for example, we say, or anything. So how do we use it? Say, I told you कि चलो यार लंच करने चलते हैं। आपने कहा इतने पैसे तो है नहीं यार, लंच करने नहीं जा सकते। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम शेयर कर लेंगे यार, इट इज़ ऑल राइट। तो क्या होगा, लेट्स डच इट, या वी विल डच इट, से लाइक दैट। ठीक है, लेट्स डच the cost of the dinner we had yesterday. That's what you say. Let's Dutch the cost. Let's Dutch. So Dutch कर देते हैं। ठीक है, आप in the restaurant you are saying let's Dutch it. से Dutch it होता है। कोई हम खरीदते हैं चीज़, हम कंपनसेट एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, पूल करते हैं, वी जस्ट ट्राई टू शेयर द कॉस्ट, वी से लेट्स डच इट होता है। तो वहाँ से डच आ जाता है, डच करना होता है। नो द लॉजिक कम्स टू योर माइंड, यार डच क्यों है? डच मीन्स वॉट? द डच पीपल। वंस अपॉन अ टाइम देयर इज स्टोरी बिहाइंड दैट, द ब्रिटिश दे डिफीटेड द डच कॉम्प्रिहेंसिवली, दे, आई राइट अ वर्ड, दे राउटेड देम। राउट करना होता है ROUT, राउटेड में देम, मतलब राउट इज टू कॉम्प्रिहेंसिवली विन करना होता है, बिल्कुल खदेड़ देना हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल ग्राउंड जीरो वाला, रेज्ड, वैसा वाला राउटेड कर देते हैं। सो दे राउटेड देम, सो एंड सिंस देन द ब्रिटिश ऑलवेज कंसिडर्ड देमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू द डच। से ऑलवेज सेड कि डच पीपल तो सारे के सारे कंडेमेबल होते हैं, बिकॉज वो इतने लायक ही नहीं होते कि वो हमसे जीत सकें। तो दे ऑलवेज कंसिडर देम टू बी इन्फीरियर। तो जितनी भी ऐसी फ्रेजेज जो उनको लो फील कराने वाली हों, वो उन्होंने डच पर बनाई। तो व्हाट इज ही सेइंग कि भैया मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो बहुत रॉयल आदमी हूँ, मैं तो तुम सबको खाना खिला सकता हूँ, चलो मेरे साथ। तो दैट्स व्हाट इज सेइंग कि यार मैं खिलाता हूँ। तो वो अपने आप को रॉयल मान रहा है, और वो कह रहा है कि तुम लोग इकट्ठे मिलकर क्यों खाते हो, बिकॉज तुम गरीब हो, तुम तो डच हो, तुम्हारे पैसे नहीं होते, तभी तो तुम मिलकर शेयर करके खाते हो। ये पहले ऐसा उन्होंने परसेप्शन से बनकर आया, अब सेंचुरी से चल के आ रहा है। अब जाकर हमने उसको दूसरे तरीके से यूज़ करना शुरू करा कि हाँ कभी भी कुछ, जैसे अब स्कूल में काउंटी बोलते थे, ये काउंटी कर लेंगे, ये काउंटी का ही दूसरा वर्जन है, कॉर्पोरेट में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ यूजिंग, डच करना होता है, लेट्स डच इट मीन्स शेयर। तो वो डच वहाँ से आया जहाँ पर उसने अपने आप को सुपीरियर माना था। और ब्रिटिश जो अपने आप को सुपीरियर मानता है, वो अपने आप को कहता है कि ऑफ ब्लू ब्लड कंसिडर करता है, ऑफ रॉयल फैमिली, ही कंसिडर्स ही इज ऑफ ब्लू ब्लड। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि हम तो ब्लू ब्लड के हैं, तुम तो डच हो, तुम्हारे पास तो इतने पैसे होते नहीं। तो ही कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी ऑफ ब्लू ब्लड होता है। फिर कभी कभी हमने देखा ये ब्लू ब्लड क्यों होता है, ब्लड तो रेड होता है, तो फिर ब्लू ब्लड क्यों बोल रहा है? वो इसलिए है क्योंकि जो ये वेस्टर्न कल्चर के वेस्टर्न साइड के जो लोग हैं, इनकी जो स्किन होती है बहुत ही फेयर होती है, दे हैव वेरी फेयर कलर, एंड बीनीथ द स्किन यू फाइंड देयर वेन्स आर अपीयर्ड इन ब्लू कलर। जो उनकी वेन्स है, जैसे हमारी अगर आप देखेंगे तो हमारा व्हीटिश कलर होता है तो ग्रीन सी लगती है, बट दे सीम टू बी ब्लू। सो देन दे से कि यार हम ब्लू कलर के हैं, हमारा ब्लड ब्लू है, तो वहाँ से उन्होंने ब्लू ब्लड निकाल लिया है, ब्लू ब्लड है, अपने आप को रॉयल फैमिली के मानते हैं, दे से गो डच हो जाता है। ठीक है, फिर एक फ्रेज होती है, इसी से उन्होंने बनाई, डच करेज मीन्स करेज shown after consuming
लिकर, डच करेज होती है, वो करेज जो वो शराब पीने के बाद दिखाता है। बिकॉज व्हेन समवन ड्रिंक्स, समवन मतलब नॉट एवरीवन बट इन जनरल वैसे बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा पी लेगा तो वो सेंसेस में नहीं रहता, वो कुछ कुछ बोलने लग जाता है या ऐसे अपने आप को ब्रेव दिखाने लगता है, तो दैट इज़ कंसिडर टू बी डच करेज होता है। जो नॉर्मली शराब पीने के बाद आदमी ऐसे बोल रहा होता है वो डच करेज होता है। ओके, दैट्स वुड से। तो इफ़ आई से समथिंग टू यू कि यार वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, तो आप कहेंगे यार ये डच करेज है, आई डोंट गिव अ डैम टू इट, दैट इज़ डच करेज होता है। ओके, इसमें तो सेंटेंस बनाने जैसी कोई बात नहीं, आपको समझ ही आ रहा है कि डच करेज कैसे यूज़ करेंगे। ओके, देन अनदर फ्रेज इज डच एक्ट टू कमिट सुसाइड हो जाता है, दैट इज डच एक्ट हो जाता है। अगेन एन एक्ट विच इज कंडेमेबल, वी से लाइक दैट ओनली। डच फिर वही नेगेटिव में लेके चल रहा है भाई, अगर वो बहादुर होता, अगर वो इतना कॉन्फिडेंट होता या इतना पेशेंस रखता कि ही वुड हैव ट्राइड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एंड देन फॉट बैक, देन वी से कि वो ब्रेव है भाई। जिंदगी का नाम क्या, लड़ाई तो है सुबह से लेकर शाम तक, वी स्ट्रगल टू सर्वाइव, से लाइक दिस ओनली इन जनरल। ठीक है, वी हैव कम टू दिस वर्ल्ड, वी वांट टू डिलीवर द बेस्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग एस्पेक्ट, बट एट टाइम्स द वन हु succumbs to the pressure, he commits suicide. The other person says, yeah, he committed suicide because he has done this Dutch act. If he's done this Dutch act means he has committed suicide, yani he was so pathetic that he could not face the pressure and then he succumbed to it, he died, he committed suicide. तो जब भी डच एक्ट की बात होगी, इसका मतलब हम उसे क्या मानेंगे, यानी नेगेटिव मानेंगे। तो ये वाला भी डच नेगेटिव हो गया, यहाँ से अगर आप देखो तो ये वाला भी डच नेगेटिव कंसीडर करा, ये वाला डच भी नेगेटिव करा। एनीवे, ब्लू आई टोल्ड यू व्हाई इट इज़ ब्लू, दिस यू नो वेरी वेल। ओके, तो डच वाली सारी फ्रेजेस कहीं ना कहीं कंडेम करने वाले नोशन से बनी हैं, काइंडली नोट दैट। So few more phrases we say. Salad days, when you are inexperienced. When you are inexperienced, we say you are going through your salad days होता है। When you are going through your phase, when you come out of college, you completed your graduation, maybe BTech or whatever, but you do not have the practical experience of the industry. So industry, when you get an opportunity, you are kept for probation, for training, and then you learn something, how to use your knowledge of the college in the industry, and then you shape yourself up according to the industry. So that experience you get there. But that period when you're not in job or when you are just out of college, that phase is known as salad days होता है। तो most of you are going through your salad days, the young people, those who are watching it, that is salad days होता है। रिलेट करके देखें तो सैलेड कैसा होता है भाई, मेन कोर्स से पहले खाया जाता है, बकबका होता है, अपना कोई टेस्ट तो नहीं होता, वो कोई बिरयानी तो है नहीं, या वो कोई राजमा चावल तो है नहीं, वो बटर चिकन तो है नहीं जिसका अपना टेस्ट होगा। सैलड तो सिंपल होता है, यानी वो खाने से पहले खाया जाता है, यानी जॉब से पहले वाला पीरियड, फिर वो बकबका होता है, यानी कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। आप भी जब इंडस्ट्री में आते हो उससे पहले आप कैसे होते हो, बिल्कुल रॉ होते हो, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होते आप। तो वही से यू आर गोइंग थ्रू योर सैलेड डेज होता है। तो जो इनएक्सपीरियंस होता है उसके लिए वर्ड, काफ़ी सारे वर्ड हमने कभी पढ़े थे, हम बोलते हैं नाइव होता है, नोविस वी नो, देन वी से द वर्ड टायरो होता है। ओके, देन वी हैव द वर्ड रुकी इज द वर्ड वी से, नहीं, एक वर्ड होता है न्यूफाइट वी से। दीज आर द फ्यू वर्ड्स, मैनी वर्ड्स लाइक दिस, ये सारे इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो इनएक्सपीरियंस होता है। जस्ट व्हाट वी कॉल इज सैलड डेज के दौरान जो चलता है वही सैलड डेज होता है। ओके, देन अनदर फ्रेज इज ब्लैक शीप, गुड फ्रेज, ब्लैक शीप होता है। ओके, वी से ब्लैक शीप इज द पर्सन, द वन हु ब्रिंग्स
what? Disgrace to the family. Who brings disgrace to the family, he is known as black sheep होता है. Okay, or we can say the one who is inferior, we can say in a group, वैसे भी यूज कर लेते हैं, we say black sheep होता है. मैं ऐसा कंसिडर करो कि घर में कोई बच्चा जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, या गुंडा बन जाए, रफियन काइंड ऑफ थिंग, देन व्हाट द फैमिली सेज, भाई ही टर्न्ड आउट टू बी ए ब्लैक शिप होता है. एक तो ऐसा हो गया, वो तो क्लियरली समझ ही आता है, डिसग्रेस टू द फैमिली. दी अदर आई से इज कि ग्रुप में मान लीजिए कोई, नॉर्मली ये ग्रुप वो वाला ग्रुप नहीं होता, ये नॉर्मली फैमिली ही होता है, मोस्टली फैमिली से एसोसिएटेड रहता है, ये नॉर्मली वैसा होता है कि घर में मान लीजिए there are 4 brothers. See, 3 brothers are magistrate and something at higher rank, IAS and certain other things. One of the brothers has a mere shop, general. तो क्या होगा जब वो कहीं पार्टी में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो 3 भाई क्या कहते होंगे, यार हम मैनेज कर लेंगे, यू फॉरगेट. Why do they so? Because why do they say so? Because the reason they consider the 4th brother is a black sheep for them. They consider him to be inferior. तो इन्फीरियर को ब्लैक शीप कह देते हैं. दोनों तरीके से ब्लैक आ जाता है. ओके, नाउ वी से ब्लैक. क्यों ब्लैक? इसलिए कि दी वेस्टर्न कल्चर दे कंसिडर ब्लैक टू बी नेगेटिव एंड वाइट टू बी पॉजिटिव. उनके अपन जब मैरिज होती है तो वाइट पहनते हैं, जब डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द मॉर्निंग दे आर वेयरिंग ब्लैक ड्रेस. तो ब्लैक इज द इंडिकेशन ऑफ द नेगेटिव देयर इन दिस थिंग. तो जो नेगेटिव कलर है, जो डेविल का कलर है, वो जो है नेगेटिव है, और जो गुड है वो डेविल का जो कलर है वो नेगेटिव मीन्स ब्लैक है, और जो वाइट है वो गुड है. दिस वे दे टेक इट दिस वे ओनली. अब तभी तो आपने देखा है ब्लैक शीप है तो ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मनी है, ब्लैक फ्राइडे वो इससे ब्लैक वो स्टेप्स लगाते हैं ड्यूरिंग द काइंड ऑफ, जब कोई स्ट्राइक करते हैं तो ब्लैक हो जाता है. यानी ब्लैक हमेशा वो नेगेटिव की तरह कंसिडरेशन में लेते हैं. दैट इज व्हाट वी से इज ब्लैक शीप होता है. तो ब्लैक नेगेटिव हो गया, तो इससे कंसिडरेशन में आ गया, जो हल्का हो नेगेटिव हो गया. और शीप अगर ऐसा भी इंटरप्रिटेशन देखना चाहें वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं. तो शीप इसलिए क्योंकि जीसस क्राइस्ट बाय प्रोफेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ शेफर्ड. ओके, ऐसा माना जाता है कि उस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, वो शेफर्ड थे, तो यानी वो भेड़ बकरियां चराते थे. तो भगवान कृष्ण क्या थे? गवाले थे, वो गाय भैंसे चराते थे, गाय चराते थे. तो मतलब क्या सारे भगवान जानवर ही चराते हैं? ऐसा तो नहीं मान सकते. बट मेटाफोरिकली स्पीकिंग इट इज़ कंसिडर्ड दिस वे कि हम सब जीसस की शीप हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमारे शेफर्ड हैं, हम इस दुनिया में चल रहे हैं, हमें भगवान रास्ता दिखा रहे हैं. ऐसे भगवान कृष्ण ने भी गाय को बोला, तो हम सब उनकी सोल जो है वो उनकी गाय हैं. कंसिडर लाइक दैट. लिटरली गाय नहीं और लिटरली शीप नहीं, लेकिन हाँ ब्लैक शीप. तो यानी जीसस इज बेसिकली गाइडिंग अस, एंड अमंग ऑल अस देयर इज अ शीप दैट इज ऑफ ब्लैक कलर, दैट इज ऑफ द डेविल. वी से दैट इज ब्लैक शीप हो जाता है. तो वहाँ से ब्लैक शीप का रिलेशनशिप बना लिया, क्योंकि ब्लैक नेगेटिव था, डेविल की थी, तो ब्लैक शीप जो है वैसी वाली होगी, ब्लैक शीप हो गया. वैसे भी अब आप देखो तो शीप जो ब्लैक शीप होती है उसकी वूल दुनिया में ज़्यादा अवेलेबल होती है, जो आप फिल्मों में देखते हो वो कम होती है. तो यानी ब्लैक शिप अगर ज़्यादा मार्केट में होती है तो उसकी अबंडेंस होती है, सो दैट इज सोल्ड एट द लो प्राइस. सो डेफिनेटली फिर वो इन्फीरियर पर्सन ही तो हुआ, ब्लैक शिप ही तो हो गया. अब किसी तरीके से भी देख लो, ब्लैक आपको समझ आने लगेगा, ब्लैक शिप हो जाता है. ओके, देन वी हैव अ फ्रेज लाइक दिस, ब्लैक विडो. अब समझ आता है ब्लैक विडो क्या है, क्लियरली समझ आता है कि ब्लैक विडो क्या होगा. ब्लैक विडो मीन्स नेगेटिव वाला. तो वी से द लेडी हु किल्स हर ओन हस्बैंड, वी से ब्लैक विडो हो जाता है. नेचुरल कोर्स में अगर विडो होती है तो वी कैनॉट से दैट इज द distinct, we cannot say anything in that case. But she kills her own husband, it means she has done a condemnable act
दैट इज़ अ ब्लैक विडो होता है। वो विडो अपनी मर्जी से बनी, गलत काम करके वो इससे ब्लैक विडो हो जाता है। दैट इज़ ब्लैक विडो इज ओके। तो ब्लैक विडो द लेडी हु किल्स हर ओन हस्बैंड इज ब्लैक विडो होता है। अगर आपने एक मूवी देखी हो, एक मूवी आई थी, आपने शायद नहीं देखी होगी, यू आर यंग पीपल, प्रोवोक्ड एक मूवी थी ऐश्वर्या राय की, वो इंग्लिश में भी आई थी और हिंदी में भी। She kills her own husband there in the movie because of certain domestic violence, certain other things. You can watch if you have access to it. We say provoked is in the movie Provoked. Aishwarya Rai was acted as a black widow. She was given a role to play black widow in that movie. We say that is a black widow होता है। black आपको समझ ही आता है कि वहाँ से कहा गया है। इसके मैथोलॉजिकल इसका एक रीज़न भी है कि जो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कहीं कि जो स्पाइडर होती है वो अपने मेल काउंटर पार्ट को मेटिंग के बाद उसके हेड को कट कर देती है। देन इट लेज एग्स ऑन द डेड बॉडी एंड व्हेन द चिल्ड्रन आर बॉर्न दे ईट द सेम डेड बॉडी। तो बड़ा बड़ा क्या नाम है, ग्रोलिंग काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज गिवन ऑफ द ब्लैक विडो। वहाँ उससे दिया है स्पाइडर से, वहाँ से ब्लैक विडो आ गया है। ओके, नाउ वी नो ब्लैक शीप हो गया तो ब्लैक विडो हो गया। नो वी नो ब्लैक विडो, ब्लैक ब्लैक सारा नेगेटिव हो गया। तो अगर मैं एक फ्रेज लिखूँ आपके लिए white lie, then what will you say white lie is? तो क्या होता है white lie? आपका जवाब आता है जी सफ़ेद झूठ। वो तो इसकी ट्रांसलेशन हो गई। और हिंदी में हम सफ़ेद झूठ से कहते हैं जो सामने सामने बोल रहा होता है, हम कहते हैं यार तो सफ़ेद झूठ है, पता ही चल रहा है, ठीक है, विच इज़ एविडेंट। नो, वी आर नॉट सेइंग white lie। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। white lie अगर आप ब्लैक से रिलेट करोगे तो शायद आपको समझ आएगा white क्या है। तो white we say now here is पॉजिटिव होगा ना, इट मीन्स a lie spoken with good intention, that is white lie. Okay, a lie spoken with good intention is known as white lie होता है। जो किसी के भले के लिए बोली जाए white lie होगा, क्योंकि black नेगेटिव और white पॉजिटिव होगा। ओके, तो अगर आपको याद है तो इन द गीता कृष्णा कन्विंस्ड युधिष्ठिर टू से अ white lie, say like that. So in the Gita, Krishna convinced Yudhishthir to tell a white lie just for the sake of some genuine reason, because he had to win this dharam yuddha and all, whatever the theories are, story is something different. Just take this example where Krishna told him to say something ashwatthama hatohosi, something of this kind. तो उन्होंने वो झूठ बोला लेकिन वो किसी रीज़न कॉज था उसके पीछे, तो वो कहते हैं कि वो वाइट लाई कंसिडर हो गया। It means now what we have understood is whenever saying black it is negative and whenever saying white it is positive. Okay, salad days you have understood. So these were the few phrases that I wanted to discuss with you. Hope you have understood. So I'll come with more such videos in the coming time. Kindly revise them, and whenever you come across any idiom and phrase, don't only mug up the answer. Go through the root, what is the origin. If you do not find the origin of the phrase, if you find it difficult to get the answer, you are welcome. You have my number with you. This number is available here. You can text me, you can WhatsApp me anytime. I will try to help you whatever best possible. Thank you very much, my dear. God bless you all.